but gradually I started scoring good marks, and I reached up to almost maximum marks I got in GTs were like 249 or 250 marks I got maximum. And this is my last GT which I gave 15 or 20 days before exam. So करोगे वो GT को रिव्यू करोगे। मैंने इस GT कॉपी की PDF भी बना रखी है, एज यू कैन सी। देखो ये रही मेरी GT कॉपी। तो इस GT कॉपी की मैंने एक एक चीज़ को लिखा हुआ है, इसके अंदर एक एक चीज़ को लिखा हुआ है। इस GT कॉपी की यदि आपको PDF चाहिए देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। देखो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो ये मैंने GT दिया था, मेरा तीसरा GT था, इन थर्ड GT आई गॉट 220 मार्क्स। देख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो अभी प्रेजेंट में रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में सब कुछ नहीं होता है, इसीलिए रैपिड रिवीजन, सिंगल रैपिड रिवीजन आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इनफ नहीं होता है। इसको आपको ऐड करना होता है। किसके साथ ऐड करना होता है? PYQs के साथ। PYQs से आप क्या निकालते हो? PYTs निकालते हो। और क्या देना होता है इसके साथ? GT भी देने होते हैं। GT देने का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं होता है। ये माई सेल्फ डॉक्टर दीपेश, currently doing my internship from JLN Medical College Ajmer. So in this video we are going to discuss basically about GRANT test. So in my last videos I told you about the strategies. Also I told you about the teachers or the resources you can use for upcoming FMG December 2024. But in this video precisely and dedicatedly I am telling you just about GTs, because there is a lot of confusion about GTs, because a lot of students are not giving GTs first of all, and many of them are giving GTs but they are not like improving their score, or they are not getting the score they want. So first of all, in this video I have written like all the questions you have in your mind. Still if something is remaining then you can comment them down below, or you can DM me on my Instagram. I'll let you know, or I'll try to solve your doubts. Okay, so first of all, when should you start giving GTs? So I'll tell you about myself. So I started giving GT on the first day. So when I started my preparation, so on that day only I started giving GTs. So the first GT which I gave, that was like I don't remember the exact date, but because this GT is old one. So in first GT I scored just 127 marks out of 300. So what does it tell? Does it tell that I don't have any kind of knowledge, or why I scored less marks? So I'll tell you the back detail about this GT. So first of all, when I came back from my college, I completed almost 15 to 16 subjects. That all I have done from my main videos, no rapid revision, nothing. But I haven't done like a lot of question practice, and I haven't done a lot of PYQs. I have just studied theory, and I have just seen main videos and notes. No revision, nothing. Just first reading I have done. Okay, after that I gave this GT. In that I got just 127 marks. The reason behind 127 marks is that I don't have proper idea, because before that I haven't gave GT, and this was my only first GT. So I don't have any idea related to the GT, that how we have to like time management. I have no idea about the time management. I have no idea about the PYQs or the type of questions which are regularly coming in GTs. But gradually I started scoring good marks, and I reached up to almost maximum marks I got in GTs were like 249 or 250 marks I got maximum. And this is my last GT which I gave 15 or 20 days before exam. So this was my last GT, and in this I scored 229 marks out of 300, and the main exam score is 190 marks. Okay, so first of all you have to like set your mind that GT doesn't tell your exact marks, or whatever marks you are getting in GTs, that doesn't mean that same marks you will get in exam. See, there can be plus 20 or minus 20 difference can be there in your main exam from your GT exam. But the role of the GT is that if you will be like you will be consistently giving the GT, then you will gradually start scoring good marks. And also a lot of PYT topics will be like cleared after giving GTs regularly. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई टू गिव GT. सो आपको GT देना ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट टू नो दी एग्जाम पैटर्न. एज यू ऑल नो कि एग्जाम का पैटर्न रेगुलरली चेंज हो रहा है. पहले 150 क्वेश्चन आते थे, बट नाउ दे आर गिविंग लाइक 40 क्वेश्चन पार्ट दे हैव डिवाइडेड इनटू 150 क्वेश्चन ओनली. सो एज टू नो दी पैटर्न ऑफ द एग्जाम यू हैव टू गिव GTs. एज टू नो दी PYTs, बिकॉज देखो यू आर सॉल्विंग PYQs रेगुलरली, आई नो दैट. बट PYQs के अंदर क्या होता है कि आप कुछ समय बाद उन क्वेश्चन को या फिर उसके आंसरों को याद करने लग जाते हो. बट दैट सेम क्वेश्चन इज़ नॉट कमिंग इन द एग्जाम. एग्जाम के अंदर क्वेश्चन चेंज हो के आता है, बट दैट टॉपिक रिमेन सेम. तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस टॉपिक के अंदर से दूसरे तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कैसा क्वेश्चन होगा? सो यू हैव टू सॉल्व GTs, बिकॉज टॉपिक सेम रहेगा, बट दे विल आस्क क्वेश्चन इन द डिफरेंट फॉर्म. सो एज टू नो दैट यू हैव टू गिव GT. टाइम मैनेजमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव GT. आपको पता चलेगा कि मैं कितना टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ, मेरे को कितना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, या फिर मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एग्जाम के अंदर, या फिर
एक क्वेश्चन के पीछे। सो अबाउट दैट यूल गेट टू नो। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपकी MCQ सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। MCQ सॉल्विंग एबिलिटी को और बढ़ाने के लिए डेली आपको MCQ सॉल्व करने क्या करना है, डेली MCQ सॉल्व करने हैं। डेली कितने MCQ सॉल्व करने हैं, कम से कम 50 से लेकर कम से कम 80 to 100, कम से कम 80 to 100 MCQ आपको डेली सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने हैं, क्या मेन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं, हमको PYQ सॉल्व करने हैं, मेन मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। प्रायोरिटीज़, आपको प्रायोरिटीज़ क्या रखनी है, MCQ की सॉल्विंग की प्रायोरिटी क्या रखनी है, FMG 5 साल के, फिर उसके बाद PG के रखना है, और उसके बाद जो भी लेटेस्ट आई होता है उसका रखना है। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन की PYQs की, ठीक है। डील ऑल दिस सब्जेक्ट टुगेदर इन द लेस टाइम। GT से आपको क्या रहेगा, आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप एक सब्जेक्ट को कुछ दिन पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट स्विच करते होंगे। बट आफ्टर गिविंग GTs यू विल लाइक स्टडी 19 सब्जेक्ट टुगेदर। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने शायद महीने भर पहले पढ़े होंगे या फिर 15 दिन पहले पढ़े होंगे, और हो सकता है कि आप वो सब्जेक्ट को भूलने लगोगे। सो आप अगर GT दोगे रेगुलरली, वीकली या फिर ट्वाइस या थ्राइस देंगे आप मंथ के अंदर, तो आप जो और सब्जेक्टों को नहीं पढ़ पा रहे हो उस टाइम चंक के अंदर, आपको उसके इंपॉर्टेंट PYTs से आपका नाता बना रहेगा GTs को देते हुए, क्योंकि आप GT देते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मेरे GT में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन GT देना ही इनफ नहीं है, उसको रिव्यू करना भी जरूरी है। तो वो कैसे क्या करते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़, व्हेन टू गिव GT, हमको GTs कब देने चाहिए। मैं अपनी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपना बेस मालूम करने के लिए कि मैं आज की तारीख में कहाँ पे खड़ा हूँ। डजेंट मैटर आपके नंबर चाहे 300 में से 100 आते हैं या फिर आपके 300 में से 300 आते हैं, डजेंट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना इंप्रूव किया। अरे विद इन स्पैन ऑफ 4 to 6 मंथ आपने कितना इंप्रूव किया, आपने कितने नंबर अपने इंक्रीज़ किए, या फिर आप मेहनत कर भी रहे हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आपको पता कैसे चलेगा। आप कैसे एनालाइज करोगे अपने आप को, यू विल एनालाइज आफ्टर गिविंग GTs ओनली। सो स्टार्ट गिविंग GT टुडे ओनली। अगर आपने अभी तक कोई भी GT नहीं दिया है देन माइंड माई वर्ड्स, अगर आपको एग्जाम पास करना है तो प्लीज़ 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 अभी से ही GT देना चालू कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आई गिव ऑलमोस्ट 35+ GTs फॉर माई एग्जाम। जस्ट एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया मैंने, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे दिए थे। कैसे कैसे क्या दिए थे वो मैं आपको भी आगे वीडियो के अंदर बताता रहूँगा, तो बने रहिएगा, ठीक है। व्हेन टू गिव GTs, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आपको GT देना है। फर्स्ट GT, मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट GT इन द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। आपकी जब प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है तभी आपको पहला GT देना है। हाउ टू गिव GT, हमको GT कैसे देना है। कोशिश करो GT को बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट होता है उसकी तरह बनाने की। कैसे, आपको सुबह उठना है, उठ के आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है, जो भी पुराना GT आपका, मतलब आपने आज एक GT दिया और उससे पहले एक GT दिया था लास्ट संडे को, तो लास्ट संडे का जो GT आपने रिव्यू किया है उसकी एक कॉपी बनाओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये रही मेरी GT कॉपी, दिस इज़ माई GT कॉपी, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक GT लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कि इसके अंदर एक GT लिख लिया पूरा, ठीक है। अब मैं जब अगला GT दूंगा तो मैं पहले क्या करूँगा, 9 बजे से अगर मेरे को GT देने के लिए बैठना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवाइज दिस GT, जो मैंने प्रीवियस GT दिया था उसको मैं पूरा पहले रिवाइज करूँगा। फिर अब मैंने इसको रिवाइज कर लिया है, नाउ आई विल स्टार्ट गिविंग। अब मैं अपना GT देना स्टार्ट करूँगा कि अब मेरे को GT देना है, तो फिर अब मैं अपना पूरा GT दूंगा। कैसे दूंगा, मैं अपना पहला पार्ट दूंगा। मैंने पहला पार्ट दिया 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने पहला पार्ट दिया। फिर उसके बाद आई विल टेक रेस्ट फॉर 1.5 आवर, मतलब 1 से 1.5 घंटे का मैं रेस्ट लूँगा। अब उसके अंदर आप नहा दो, जो भी आप XYZ काम करना चाहते हैं घर पे रहते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आधे पौन घंटे के बाद आप अपना दूसरा GT शुरू कर सकते हो, बिकॉज आपको सिर्फ GT दे के उस दिन को ख़राब नहीं करना है, आपको उसके बाद GT को रिव्यू भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट के बारे में करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कब देंगे हम, जब हम आधे पौन घंटे का ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 से लेकर 3:30-4 बजे तक हमारा दूसरा GT खत्म हो जाएगा। दिस इज़ अबाउट GT, कि आपको GT कैसे देना है, एग्जाम के माहौल को बना के देना है, ताकि आपको मेन एग्जाम के अंदर जब आप GT दें तो आपको ऐसा लगे ना कि मैं कोई नई चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ मेनी मिनिमम या फिर मैक्सिमम GT हमको कितने देने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम या मैक्सिमम। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कितने मैक्सिमम GT देने चाहिए, आप जितने ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। इट इज़ नथिंग लाइक दैट कि इतने तो देने ही चाहिए या फिर इतने देने से मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको, यदि आपके पास टाइम कम रहता है, देखो आपके पास टाइम कम नहीं रहेगा, बिकॉज ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, बनाने का मतलब यही है कि आपके पास अभी अलॉट ऑफ टाइम है, बिकॉज अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर अगर आपका एग्जाम हो रहता है, अगर आप वीकली GT देते हो या फिर आप 2 वीक में 1 GT भी देते हो, देन ऑल्सो यू कैन गिव ऑलमोस्ट 6 to 7 GT या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैं मिनिमम बोलूँगा कि कम से कम 4-5 GT तो आप दो ही दो, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी प्रेजेंट के अंदर भी कुछ भी नहीं है तो भी आपको 1 GT तो अभी देना ही देना है, ताकि आपको पता चले कि मेरा बेस कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मैक्सिमम GT कितने देना है। मैंने आपको बता दिया कि हर वीक GT दो या फिर 2 हफ्ते के अंदर एक बार GT दो, मतलब महीने में कम से कम 2 से 3 GT तो हमको देने ही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें देखो इतना इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने मार्क कर रखा है कि ओनली गिविंग GTs विदाउट रिव्यूइंग देम इज़ वेस्ट, ठीक है।
अगर आपने आज जीटी दिया और उस जीटी को देके अगर आपने अपने फ़ोन में ऐप में जिसमें भी आपने दिया उसको छोड़ दिया तो वो जीटी का कोई सेंस नहीं होगा। आप ऐसे 10 या 50 जीटी दे लो, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप जीटी को रिव्यू नहीं करते हो तो वो जीटी देने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा था, आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, या फिर किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है आने वाले समय में। क्योंकि आप बहुत सारी मिस्टेक करने वाले हो जीटी के अंदर। आप उन मिस्टेक को जब तक रिव्यू नहीं करोगे, जब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को आने वाले समय में इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, अब जीटी को रिव्यू कैसे करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट इज़ हाउ टू रिव्यू जीटी। बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिव्यू जीटी। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, जीटी का सबसे पहले ये है कि मार्क्स डजेंट डिफाइन योर प्रिपरेशन। कितने भी नंबर आए आपके 300 में से 200 आते, 100 आते, 150 आते, डजेंट मैटर, क्योंकि आप मेन एग्जाम में नहीं बैठे हो लेकिन आप मेन एग्जाम की तैयारी के लिए बैठे हो। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आपके 150 मार्क्स आए तो आप उनको देखो कि मेरे 150 जो गलत क्वेश्चन हुए वो क्यों हुए हैं, उनका कारण क्या है, क्या मैंने सही से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर मेरे नोट्स में वो चीज़ नहीं थी, या फिर मेरी एग्ज़ाम के टाइम पे जब मैं भी जीटी दे रहा था तो उस टाइम पे मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, क्यों नहीं सोच पा रहा था मैं उस आंसर को या उस क्वेश्चन को क्यों नहीं समझ पा रहा था, अगर वो चीज़ मैंने पहले से पढ़ी हुई है। क्योंकि 300 में से ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन तो वो होते हैं जो आपके नोट्स के अंदर से आते हैं। 40 to 50 क्वेश्चन आई कैन अंडरस्टैंड कि वो थोड़े और चीज़ें हो जाती हैं जो कोई और टॉपिक से या फिर पीवाईटी से रिलेटेड नहीं होता, बट स्टिल 250 क्वेश्चन यू हैव, उसके अंदर से भी आप अगर 50, 60, 70 क्वेश्चन गलत कर देते हो देन ऑल्सो यू कैन पास द एग्जाम। ठीक है, तो मार्क्स सबसे पहले तो क्या है, मार्क्स डजंट डिफाइन योर प्रिपरेशन। ठीक है, इट्स अमाउंट ऑफ द मिस्टेक यू आर मेकिंग एट होम एंड डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सेम मिस्टेक इन एग्जाम। ठीक है, अगर आप घर पे मिस्टेक्स कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर जाने के बाद वो मिस्टेक नहीं होंगी। आप सबसे पहले क्या, ट्राई टू रिव्यू ओल्ड जीटी बिफोर गिविंग न्यू जीटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यदि आज कोई नया जीटी देने वाले हो तो आपको उससे पहले क्या करना है, आपको उससे पहले पुराना जो जीटी है, मतलब आज जीटी दोगे तो पुराना जीटी जो आपने कॉपी में लिखा है उसको रिव्यू करना है। अब रिव्यू करने के देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आपने आज जीटी दिया और 1 या 2 दिन के अंदर आपने पूरे 300 के 300 क्वेश्चनों को रिव्यू कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप हर हफ्ते जीटी दे रहे हो तो आप क्या करोगे, उस पूरे हफ्ते के अंदर रिव्यू करोगे। डेली के 40-50 क्वेश्चन स्प्लिट कर लो कि डेली के मेरे को 1 से 2 घंटा या 1 से 1.5 घंटा मेरे को निकाल के डेली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मान लो 150 क्वेश्चन सही होते हैं और 150 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं, ठीक है, ये जो 150 क्वेश्चन है हम इनको लास्ट में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सही क्वेश्चन है, तो हमको पता है कि इसके अंदर से तो मैक्सिमम चीज़ें हमको आती है। हो सकता है 150 के अंदर आपने 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुक्के मारे होंगे या फिर गेस मार्क होंगे जो आपकी गलती से सही चले गए, तो उनको देखना है बस। क्योंकि बहुत सारे मैरो जैसे अगर आप एक ऐप के अंदर देते हो तो उसके अंदर गेस मार्क करके एक ऑप्शन आता है, तो उस पर हम ज़्यादातर क्लिक कर देते हैं और उससे हमको पता चल जाता है गेस मार्क वाले बुक मार्क के अंदर जाके कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने गेस मार्क किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारा जो टारगेट है वो सबसे पहला टारगेट क्या है, 150 जो गलत क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, उन गलत क्वेश्चनों को हमको क्या करेंगे, हम 150 के क्वेश्चनों को इनको स्प्लिट कर लेंगे 3, 4, 5 दिन के अंदर कि हमको इस वीक के अंदर पूरा जीटी रिव्यू करना है। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर लो और हर दिन जितना जितना आप समय देना चाहते हो कि 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, और ये मैं 1 घंटे के अंदर रिव्यू कर सकता हूँ, बस उनको रिव्यू करो। रिव्यू करके क्या करना है, रिव्यू सिर्फ ऐसे ऊपर 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 करके रिव्यू नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया, ये मेरी जीटी कॉपी है, देखो एज यू कैन सी दिस इज़ माय जीटी कॉपी। इसके अंदर मैंने पूरे दिख रहे हैं आपको, ये पूरे जीटी हैं, पूरे जीटी रिव्यू करके लिखे हैं। तो आप जो भी मिस्टेक्स करोगे वो जीटी को रिव्यू करोगे। मैंने इस जीटी कॉपी की पीडीएफ भी बना रखी है, एज यू कैन सी देखो ये रही मेरी जीटी कॉपी। तो इस जीटी कॉपी की मैंने एक एक चीज़ को लिखा हुआ है, इसके अंदर एक एक चीज़ को लिखा हुआ है। इस जीटी कॉपी की यदि आपको पीडीएफ चाहिए देन यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। ठीक है, देखो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो ये मैंने जीटी दिया था, मेरा तीसरा जीटी था, इन थर्ड जीटी आई गॉट 220 मार्क्स। देख रहे हो मेरे थर्ड जीटी, फर्स्ट जीटी में मैंने आपको कितने बताए थे, 127 मार्क्स आए थे। थर्ड जीटी में मेरे 221 मार्क्स आ गए। वाई, वट इज़ द रीज़न? बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग द थिंग। मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा था, बट आई हैव नॉट द प्रॉपर आइडिया अबाउट कि मुझे जीटी कैसे देना है, किस तरीके की पीवाईटीज़ होता है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा, देन आई स्टार्टेड इंप्रूविंग द मार्क्स। अब आप देख सकते हो कि आपको जीटी रिव्यू कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया कि आप स्प्लिट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद आपको जीटी कॉपी के अंदर कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक है बस टॉपिक से रिलेटेड आपको चीज़ लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल टोपोइसोमरेज 1 इनहिबिटर के बारे में पूछा था, तो 2 ड्रग की इरेनिटोकेन और ट्रोपिटोकेन। ठीक है, तो आपको ये दोनों ड्रग लिख दी। टोपोइसोमरेज 2 के अंदर लिख दिया एटोपोसाइटिन, ओपोसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। देखो ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसका क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पीवाईटी, वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईटी, हर बार पूछा जाता है। अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग, इंडिया कौन सी स्टेज के अंदर आती है, स्टेज 3 के अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलरली पूछी जाती है, सब आप देख सकते हैं ऊपर माइक्रो से।
क्या म्यूकर माइकोसिस के बारे में नहीं पूछा जाता है। ये जीटी है, देख रहे हो ना आप, ये जीटी है और ये जीटी के अंदर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है हमारी जो है, ठीक है। ये रहा डायबिटीज़ के बारे में कि एनपीडीआर कौन सा होता है, पीडीआर क्या होता है, उसके कितने माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक टॉपिक को लिख सकते हो, फिर आप जब अगली बार रिवाइज़ करोगे तो यही सेम टॉपिक को आप जब भी कोई नया जीटी दोगे तो उससे पहले आप क्या करोगे, अपना जीटी खोलोगे। आपने फॉर एग्जांपल दूसरा जीटी दिया था, फर्स्ट जीटी को रिव्यू करोगे, तीसरा जीटी दिया तो फर्स्ट और सेकंड को रिव्यू करोगे, चौथा जीटी दिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को रिव्यू करोगे। इस तरीके से आपको रेगुलर जीटी रिव्यू करना है। देख सकते हो मेरी जीटी कॉपी, कैरोटेड कंटेंट ऑफ कैरोटेड ट्रायंगल, देख सकते हो मैंने किस तरीके से एक एक चीज़ को लिखा है। क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक के बारे में लिखा है। सी दिस इज़ हाउ आई हैव डन। आपको पता है रेबीज़ के बारे में रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरोरिसेप्टर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये रहा नॉनसेंस, म्यूटेशन के बारे में पूछा जाता है, नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट, साइलेंट के बारे में पूछा जाता है। कल्चर मीडिया देखो, इसमें सारे कल्चर मीडिया, स्टेफोरियस का कौन सा आता है, मैनीटॉल, लुडलेम्स होता है, स्टेप्सोकोकस पायोजेनिस का होता है, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट ब्लड का, निसीरिया मेनिंजाइटिस का, डिप्थीरिया का, एंथ्रेक्स का, सीरस का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ही साथ जीटी की कॉपी की वजह से क्या हो गई, एक साथ सब कुछ आ गई। ये कॉपी जब हम बार बार रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमको बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितने सारे पीवाईटीज़ जस्ट जीटी दे के हमने उन चीज़ों को पढ़ लिया। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो रैपिड रिवीजन, आप लोग पढ़ रहे हो अभी प्रेजेंट में रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन में सब कुछ नहीं होता है, इसीलिए रैपिड रिवीजन, सिंगल रैपिड रिवीजन आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इनफ नहीं होता है। इसको आपको ऐड करना होता है। किसके साथ ऐड करना होता है, पीवाईक्यूज़ के साथ। पीवाईक्यू से आप क्या निकालते हो, पीवाईटीज़ निकालते हो। और क्या देना होता है इसके साथ, जीटी भी देने होते हैं। जीटी देने का मतलब सिर्फ नंबर लाना नहीं होता है, ये इसके अंदर एडिशन है, आपके आरआर के अंदर एडिशन है कि आपने जो चीज़ें आपने आरआर के अंदर नहीं पढ़ी वो जीटी के थ्रू आपकी प्रिपरेशन के अंदर आएंगी और आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। व्हाट ऑल अबाउट क्वेश्चन नीड टू रिव्यू, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्वेश्चन आपके सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको रिव्यू करना है, फिर उसके बाद स्किप करना है, वो क्या बताया जो स्किप करे थे अपने क्वेश्चन उनको, फिर जो गेस मार्क थे और उसके बाद लास्ट के अंदर रेस्ट जो भी आपके सही क्वेश्चन थे, ठीक है। कहाँ पे जीटी देना है, जितने भी ऐप पे फ्री जीटी अवेलेबल होता है, कोई भी ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो जस्ट मैरो का ऐप खरीदो और कोई ऐप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप सेरिबेलम पे जीटी दे सकते हो, आप फिजिक्स वाला पे जीटी दे सकते हो, आप रैपिड पे जीटी दे सकते हो। जो भी ऐप अवेलेबल होते हैं सब पे 2 4 5 7 जीटी आराम से अवेलेबल होते हैं। मैंने सब पे दिया है, एलन पे, ई गुरुकुल पे, भाटिया डैम्स, जिस पे भी फ्री जीटी अवेलेबल होता है सब पे जीटी देना है आपको, ठीक है। डू जीटी रिजेंबल्स एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल जीटी का जो पैटर्न होता है वो एग्जाम के जैसा ही बनाया जाता है। मोस्टली आई विल प्रेफर यू कि मैरो का जीटी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मैरो के जीटी से आप ऑलमोस्ट मतलब देखो ये +20 -20 आइल से, लेकिन आपका जीटी जेन्युइन होना चाहिए। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के अंदर, जो जीटी दे रहे हो वो चीटिंग नहीं होनी चाहिए जीटी के अंदर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घर पे स्टिकी नोट वगैरह लगा के रखते हैं और जब जीटी दे रहे होते हैं तो यार सामने उठ के देख लेते हैं, अरे ये तो मेरे को आता था, और फिर आप मार्क कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जीटी देना है तो एक भी क्वेश्चन की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर आपको स्टिकी नोट सामने देखने को नहीं मिलेंगे कि आप चीटिंग करवाओगे। जीटी का स्कोर कैसे बढ़ाना है मैंने आप लोगों को बता दिया। आप जीटी देते जाओ और उसके बाद जो आपने पुरानी जीटी दी उनको कॉपी में लिखो और उन कॉपी के अंदर, और जब भी नया जीटी दो तो वो कॉपी से आप पुरानी जीटी को रिव्यू करते रहो। उससे आपके जीटी का स्कोर बढ़ने लग जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका स्कोर उस लेवल तक नहीं बढ़ पा रहा है तो आप क्या करो, पहले रिव्यू करो आपका जो जीटी है जिसके अंदर आपके कम मार्क्स आए, और जो सबसे वीक के सब्जेक्ट है उस वीक के सब्जेक्ट के जाके अपने नोट्स खोलो, जिस नोट से भी आपने रिवीजन किया था, जिस नोट से भी आपने पढ़ा था, और फिर उसके बाद उनको रिवाइज करो, ठीक है। उससे आपका जीटी स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली कौन सा वीक सब्जेक्ट आ रहा है। तो आपका वीक सब्जेक्ट अपने आप ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा जब आप दोबारा नोट्स की तरफ रेफर करोगे, ठीक है। दैट्स वाई जीटी के साथ साथ रेगुलर रिवीजन भी ज़रूरी है। डू और जीटी स्कोर मिमिक्स और एग्जाम, देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी कि जीटी का स्कोर +20 वो रहता है, क्या बोलते हैं, +20 -20 रहता है, ऑलमोस्ट +20 -20 रहता है। अगर आप तरीके से इज्जत से जीटी दे रहे हो तो, अगर आप इज्जत से जीटी नहीं दे रहे हो, चीटिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड कर रहे हो तो वो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका मन जानता है कोई और जाने या ना जाने। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्ज़ाम में जीटी के अंदर 150 नंबर से ऊपर नहीं आते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनके 140 130 मार्क्स आते थे, स्टिल दे गॉट 170 180 मार्क्स इन द मेन एग्ज़ाम। तो देखो एग्ज़ाम तक आपका फैक्टर होता है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए जीटी के नंबर से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था जीटी इज़ जस्ट फॉर आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो आप रेगुलर बस जीटी देते रहो और उसके बाद जो भी होगा वो एग्ज़ाम के अंदर हमको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जीटी का स्कोर अगर आपका 150 से कम भी आ रहा है तो आप बस कोशिश करो कि मैं रिव्यू करता रहूँ, मैं रेगुलर रिवीजन करता रहूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर बढ़ाऊँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कम मार्क्स आएंगे या फिर ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो फोकस करनी है और कोशिश करनी है कि हमको जीटी के अंदर कम से कम 180 से ज़्यादा नंबर लाने ही लाने हैं। क्योंकि 180 अगर +20 -20 भी होगा तो भी हमारे 150 से नीचे नंबर कैसे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीटी, ठीक है।
और हमारे पास LMR नोट्स भी हैं, एज़ यू कैन सी दीज आर LMR नोट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये LMR नोट्स मैंने, LMR का मतलब लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। तो ये अगर आप इफ़ यू वांट बाय ऑल दीज नोट्स देन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। ये हमारे LMR के नोट्स हैं। देखो एज़ यू कैन सी हमने LMR के नोट्स के अंदर सारी चीज़ें हैं, जो कम चीज़ें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो हमने एक ही साथ कम इकट्ठी करने की कोशिश की है, ठीक है। तो एज़ यू कैन सी इट विल बी ईजी टू रिवाइज। लास्ट टाइम पे यदि आपको रिवाइज करना है तो आप ये LMR नोट्स ले सकते हैं। फॉर दैट यू कैन कमेंट में डाउन बिलो, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप मेरे को, ये मेरी इंस्टा ID है, यू कैन मैसेज मी ओवर देयर। सो थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट GT स्ट्रेटेजी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस।